Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nidhi Educator and today we are going to solve question number 4 that I have given you as homework. Okay, I have given you the trial balance of Mr. Sohan Lal on 31st December 2023. I hope you have started the question and you have solved it. But what I'm going to extend here in this question, the balance sheet. Let's see that balance sheet भी tally होती है कि नहीं होती है, okay? Because I have given you to make only trading account and profit and loss account, okay? So let's start here. Just watch and check it out. First of all, in particulars column, uh, you have to make trading account of Mr. Sohan Lal for the year ended in this much, then debit and credit, then particulars amount rupees, particulars amount rupees. Now, first we are going to write here 2 and then buy. Don't miss any of the steps. Okay, सब चीजों पे marks होंगे. Okay, so let's start here quickly. Stock in hand कितना आपका आ रहा है? That is opening stock. So first I'm going to write here to opening stock. In trading account or direct expenses, right? So 20,000 is then capital account, ये आपका जाएगा उसमें. Balance sheet, cash in hand, cash at bank, machinery, furniture and fittings, all in balance sheet. Then purchases, 2 purchases. Now, when you are posting the entry of purchases, always see for that there is a cash purchase or credit purchase or there is a returns also. Okay, so returns कहीं पे है, पहले आप ये देख लें. So here I don't find any returns. So I'm just going to write here 1,50,000 simply. एंड सेल्स भी देख लीजिएगा आप. जैसे ही परचेजेस करें वैसे ही आप सेल्स भी फौरन देख लिया करिए. कहीं पे तो नहीं है इसका रिटर्न्स, नो रिटर्न्स. दैट इज 5 लाख. ओके, एंड दिस इज 20,000. जरा सा मैं हटा के इधर लिख दूं. ओके, ये भी तरीका होता है लिखने का, राइट? थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड, हंड्रेड से वाला जो है जरूर फॉलो किया करिए आप. नाउ वेजेस ऑलवेज इन ट्रेडिंग अकाउंट. डायरेक्ट एक्सपेंस 1 लाख. Then fuel and power again to trading account. Fuel and power कितना है? 30,000. Then factory lighting. It is 2,000. Then office salaries. Tell me in the comment section, office salaries आएगी किसमें? PL में आएगी या trading में आएगी? Discount allowed, discount received, office expenses, then advertising expenses, sales, sundry debtors and sundry creditors, and closing stock. Always sales के बाद पहली चीज you have to record the first and the most important point is closing stock. Now 5 lakh कितना आ रहा है ये? आई होप ये 5,27,000, राइट? तो और इसमें तो 2 और समथिंग आ रहा है तो ये तो कम ही है. तो वी विल राइट हियर 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, पूरा लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, लाइंस आप अपने हिसाब से सीधी सीधी कर लीजिएगा बिकॉज यू विल बी हैविंग अ रजिस्टर पेज. And here 5,27,000. 5,27,000. Now add all these and then subtract. You will get here gross profit of 2,25,000. अब इतना एडिशन कर लेना, राइट? नाउ मेरा तो ये इतना नीचे एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है. व्हाट वी विल डू हियर, अब वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस ग्रॉस प्रॉफिट टू profit and loss account. Now let's see how we are going to solve this. First, I'm going to make a table here. In profit and loss account, remember आपके indirect expenses and indirect incomes बहुत होती है, ठीक है.
टैली तो इस तरह भी हो जाता है, अगर आप इसको ट्रेडिंग में कभी गलती से आप डाल देंगे इधर एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो बैलेंस तो कहीं ना कहीं आ जाएगा, लेकिन सेम अमाउंट से टैली नहीं होगी। जो करेक्ट आपकी चीज होगी वो टैली नहीं होगी, राइट। तो हमें रूल्स फॉलो करना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलवेज इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलवेज इन पीएल अकाउंट, राइट। तो वो चीज जब फॉलो करेंगे तो मार्क्स कहीं से आपके डिडक्ट नहीं होंगे, राइट। वी हैव टू फॉलो दिस। सो नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट पुट द हेडिंग प्रॉफिट and loss account, okay, for the year ended December 31st, 2023. Now what we are going to do, debit, credit, particulars to always start with two, okay, and here by. ये आप जर्नल्स की जो एंट्रीज होती है ना उसी के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। Then this is what particulars एवरीथिंग इज कनेक्टेड, राइट। जो भी आप करके आए नाइन्थ क्लास में वो सब इससे इंटरलिंक्ड है। उसमें तो आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, तब ट्रायल बैलेंस के बाद ये सब चीजें बनती हैं कंपनी में, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ट्रांसफर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। 2,25,000। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट हियर। Stock, capital, cash in hand, cash at bank, machinery, furniture, purchases, wages, fuel, power, factory lighting, office salaries, right? So to office salaries, 70,000. Then to discount allowed है, अगर received होता तो हम इसको credit में करते हैं। Allowed है, it means it's an expense. Allowed is 5,000. Received देखो आ गया फॉरन, तो by discount received and how much? 3,000. Then office expenses, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जो जो चीजें आती जाए आप उसको पोस्ट करते जाइए करेक्ट अकाउंट में, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, लिखने में कंजूसी मत करिएगा प्लीज। 50,000। एंड सेल्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अगेन इन द here you have the total आप स्केल से करिएगा। अब देखने से ही लग रहा है ना इधर का ज्यादा है। 2,25,000 प्लस 3,000 यू विल गेट 2,28,000। देखो मैक्सिमम टाइम्स, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कैलकुलेट ना करिए, बट मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, 95% आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आता है। बट यू शुड कैलकुलेट, ओके। सो 2,28,000 माइनस करेंगे 70,000, 5,000, 40 एंड 50, सो यू विल गेट हाउ मच नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। अभी मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कैसे कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर अगर 2,28,000 आ गया ना, ये तो मैंने कर दिया। नाउ कितना है, 70,000 प्लस 5,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000, कितना आया, 1,65,000 यहाँ पर का आया डेबिट का। तो
तो हमने 2,28,000 को माइनस करा 1,65,000 से, तो आपको मिल गया 63,000 इज योर नेट प्रॉफिट। अब बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं है कि हर बार नेट प्रॉफिट ही आए, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स आती है। ठीक है, तो इधर का ज्यादा था, इधर से जब मैंने इसको माइनस करा, क्रेडिट से माइनस करा डेबिट को, so I am going to get the net profit. Now the next thing, important thing, what I am going to add here, I am going to make a balance sheet, right? So let's start the balance sheet. अब देखो, बैलेंस शीट टैली होने का मतलब है कि आपने अपना काम बिल्कुल सही परफेक्ट किया है। ओके, और इसी पे मार्क्स भी मिलते हैं। फॉर्मेट आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का बना रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस का, वैसे ही अमाउंट, वैसे ही कॉलम बनना है, लेकिन उसकी हेडिंग्स अलग हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है कि बैलेंस शीट है भाई। सो यू विल राइट हियर बैलेंस शीट, ओके, एज एट, जो भी डेट मेंशन होगी, December 31st 2023। liabilities on the left hand side, amount rupees, and assets on the right hand side। अब इसमें डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं पड़ता, राइट? नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो फिक्स्ड एसेट्स हैं हम पहले वो लिख लेंगे। जैसे मशीनरी है आपका, वैसे तो आप कोई भी चीज कर सकते हैं, जो जो आता जा रहा है वो लिखते जाइए। ओके, अच्छा ये सॉरी, आप लोग को तो एडजस्टमेंट्स करने ही नहीं है। 60,000। देन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फॉर्मेट आपके पास है, आप उसको भी देख सकते हैं, राइट? 13,600। अच्छा, परचेजेस ऑलरेडी उसमें है। देन आई थिंक कैश इन हैंड कितना है, 1 लाख। कैश एट बैंक 10,000, राइट? ना देखो अब क्या इसमें बचा, एसेट्स में आएगा सन्ड्री डेटर्स। बाकी तो सब पीएल और ट्रेडिंग में आ ही चुका है ना। 85,000 एंड नेवर मिस क्लोजिंग स्टॉक। एक यही एडजस्टमेंट आपके यहाँ है क्लास 10 फाइनल अकाउंट्स में, आईसीएससी, राइट? क्योंकि आपके बोर्ड्स में एक यही एडजस्टमेंट आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। नाउ यू कम टू दिस पॉइंट, कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, कैपिटल कितना गिवन है देखो, कैपिटल सेकंड नंबर पे है 1 लाख। अच्छा, कैपिटल को हम बाहर नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, बिकॉज जब नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा हमें उसमें करना पड़ता है वो। अगर नेट प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, नेट लॉस है तो उसको डिडक्ट करेंगे। और ड्राइंग्स तो है नहीं, तो ड्राइंग्स को कुछ नहीं करना है। कैपिटल के वो नेट प्रॉफिट कितना है, 63,000। व्हाट दिस मच। अब देखो और तो कुछ भी नहीं है इसमें ना, बिल्स कुछ भी नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट योर क्रेडिटर्स। खाली क्रेडिटर्स ही बचे हैं, क्योंकि डेटर्स हैं तो क्रेडिटर्स भी होते हैं। 37,000। ज्यादातर ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। नाउ आई एम गोइंग टू टैली द बैलेंस शीट, देखते हैं हमारी बैलेंस शीट टैली होती है कि नहीं होती है। 60,000 plus 13,600 plus 1 lakh plus 10,000 plus 85,000 plus 27,000, so you will get here 2 lakh। यही सस्पेंस होता है यहाँ पे। Then 63,000 plus 37,000, 1,63,000 and 37,000, so you will get 2 lakh answer। Okay, now I'm going to scroll and let you know question number 4 में जो मैंने एडिशन करा था,
First, we are going to make a trading account of Mr. Sohan Lal. This is the trading account. We got the gross profit of 2,25,000. We are going to transfer it to the profit and loss account. You have made here like this by gross profit. And then after doing the indirect expenses and comparing with indirect incomes, we get the net profit. And then we are going to transfer it to the balance sheet's capital liability side capital account. And this is your balance sheet and it is being tallied. Okay, great job. Those who have done this, very well done. Okay, and for your homework, I'm going to give this question. Prepare a trading and profit and loss account and balance sheet of Mr. Amit for the year ended 31st March 2023 from the following trial balance. The trial balance is here. The amounts are given. First, you have to make a trading account, then gross profit, gross loss, कुछ भी आएगा वो आपको transfer करना in profit and loss account, then profit and loss account में net profit or net loss, whatever you get. Okay, you are going to transfer it to the capital account, that is the balance sheet. And then इसको tally होना चाहिए, right? So this is your homework. I hope you can do. अगर balance sheet नहीं बना पाते, tally नहीं होती है, तो we will do the correction. I'm going to solve in the next video, so don't miss that part also. Trading account और profit and loss account तक आप बना सकते हैं, right? And very simple, ज़्यादा कुछ नहीं होगा difference. Closing stock देखो बाहर mention किया, तो closing stock in trading account you have to mention, and then in balance sheet. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, so you can do it by yourself also and follow for more. Thank you.